Good morning parents. Welcome to Apple International School. Today we all are here for parent orientation program. So before starting this program let me tell you about what is parent orientation program. कि ये असल में होता क्या है. Like for example, once you introduce or admit your child in a school, आप अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं किसी भी स्कूल में, तो so many questions occur in your mind. आपके दिमाग में बहुत सारे questions आते हैं कि हमने एडमिट तो कर दिया है, हमें सिर्फ फीस पता है, वहाँ जाके in what way they will be taught, उनको कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या एनवायरनमेंट सेफ एंड सिक्योर है, हमारा बच्चा सुरक्षित है या नहीं है, किस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पर करवाई जाएगी, कौन सा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, क्या मेरे बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ वहाँ पर होगी या नहीं होगी. ऑल दीज क्वेश्चंस अकर इन योर माइंड. तो इन्हीं क्वेश्चन का जवाब देने के लिए इस तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं. सो आवर स्कूल ऑल्सो यूज टू ऑर्गेनाइज दीज पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम in which we invite the parents to come with us and we have a communication. Means a free communication in between will be there. हमारे बीच में एक open communication रहेगा जिसके अंदर आप लोगों की जो भी queries और doubt होगी वो हम clarify करेंगे. A part of that you will get a chance at the end of the session to meet the admin staff. Admin staff means आप principal ma'am, vice principal ma'am, आप coordinator, इन सब से मिलकर के अपने जो भी mind में आपके queries है regarding the fee structure, regarding the facility, regarding the other things, regarding your wards, you can clarify all those doubts. उन सभी doubts को आप clear up कर सकते हो. So let's start the session. Okay, so very first thing is this is the management. ये हमारा admin management है. Okay, chairman sir, Harpreet Singh sir, who is also known as Aman sir, and MD managing director Varinder ma'am, principal ma'am Mandeep Pal ma'am. Our vice principals from junior wing and senior wing, Sudeep ma'am, Ankita ma'am. Our coordinators, Raja sir, Jagdeep sir, and it's me, Poonam. Now, let's talk about the parent orientation program. Now, we usually say to you to choose our school. Why to choose our school? अब आपको हम कहते हैं कि हमारे स्कूल को चुनिए, अपने बच्चे को हमारे यहाँ एडमिट करिए. अब उसके पीछे क्या कारण है? We will give you the reason. हम आपको कारण देंगे कि आप क्यों हमारा स्कूल चुनिए, हमारा स्कूल दूसरे स्कूल से बेहतर क्यों है और किस तरह से अलग है. We will let you know about this. So these are the points we are going to discuss today. ये कुछ खास points है जो आपको सामने आज रखे जाएंगे. The first one is the curriculum. Curriculum we can say the things we taught, जो हम पढ़ाते हैं. The second one is the strategies and the method. मतलब किस तरीके से आपके बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता है, कौन से मेथड, कौन सी स्ट्रेटेजी, कौन सी पैडागॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, एंड हाउ आर दे इम्प्लीमेंटेड. अब अगर मेथड है, फॉर एग्जांपल एक मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, लाइक वी कैन से हैंड एंड ऑन प्रैक्टिस हो जाती है, फॉर एग्जांपल दिस वन वी आर यूजिंग. अब ये इम्प्लीमेंट कैसे की जाती है, उसका इस्तेमाल किया कैसे जाता है. द नेक्स्ट वन इज व्हाई आर दे रिक्वायर्ड फॉर द स्टूडेंट्स. मीन्स आज के दौर में व्हाई सच काइंड ऑफ मेथड एंड स्ट्रेटेजीज आर रिक्वायर्ड. लाइक हम भी पढ़े अपने पुराने टाइम के अंदर, at that time there were no such kind of activities, ऐसी activities नहीं होती थी, but today's learning is completely changed. So why it is required, why it is demanded in today's time, what are the expectations of the parents. Now this is the most important part for us कि आप लोगों की हमसे क्या उम्मीद है और क्या हम उन उम्मीदों पे खरे उतर रहे हैं. That is also one of the most important fact of our parent orientation program. Now let's come to these points. Now what are these points are given to you. तो ये रीज़न है जिसकी वजह से आप हमें चुनिए. तो ये रीज़न क्या है? फोकस ऑन फाउंडेशनल ईयर, शुरुआती दौर, जो हमारे बच्चे का बिल्कुल शुरुआती समय होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नॉर्मली पीपल लोग जो होते हैं उसे निगलेक्ट करते हैं, सोचते हैं कि छोटा है बच्चा, आसपास के स्कूल में लगा दिए, विच इज़ नॉट गुड फॉर अस. सो वी यूज टू गिव द रीज़न दैट वाई दीज ईयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम. 2 से 6 साल के समय जो होता है बच्चे का क्यों ज़रूरी होता है. लो टीचर स्टूडेंट टीचर रेशियो मीन्स जो बच्चों का और टीचर का हम रेशियो क्लास में लेके चलते हैं. वी विल लेट यू नो अबाउट दैट. स्मार्ट क्लासरूम, as you can see this one interactive panel, the same panel will be available in your classroom. आपके बच्चों के क्लासरूम में यही पैनल्स होते हैं. apart of that other curricular activities are also being included. एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, एंड वी आर ऑल अवेयर अबाउट दैट कि आज की जो पढ़ाई होती है वो एक्टिविटी बेस्ड रह गई है. ओके, अब हम ये नहीं कि पहले की तरह बस लिखती पढ़ती कर दिए, 2 डंडे बच्चे को लगाए, ऑल दिस थिंग्स. दिस इज नॉट अलाउड इन टुडेज टाइम. द स्टूडेंट्स नीड्स टू बी वेरी एक्टिव, और उसको एक्टिव करने के लिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रिक्वायर्ड है. होलिस्टिक ग्रोथ मीन्स कंप्लीट ग्रोथ, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक की ग्रोथ रिक्वायर्ड होती है. दैट इज मस्ट इन टुडेज टाइम.
moral and co-curricular activities along with the syllabus, along with the curriculum, they should have some ethics. उनके अंदर तरीके एटिकेट्स वगैरह भी आने ज़रूरी है. उन्हें पता होना चाहिए कब किसके सामने कैसे बिहेव किया जाता है, लोगों का मान सम्मान कैसे किया जाता है और कैसे पाया जाता है. स्टूडेंट काउंसलिंग, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. आज के समय में काउंसलिंग इज एवरीबडी इज सफरिंग ऑफ द स्ट्रेस, चाहे वो छोटा बच्चा है या एक बड़ा व्यक्ति है, चाहे बुजुर्ग ही क्यों ना हो, सबको स्ट्रेस होती है, सबको टेंशन होती है. Sometime this may affect a student as well, और किस स्टडी पे भी असर आता है. For that we used to provide the counseling also. And safe and secure environment. Every time our CCTV camera are on work, वो हमेशा काम करते हैं and the admin staff they used to observe the classes with the help of these. उसकी मदद से उनको ऑब्जर्व करती है ताकि आपके बच्चे को पूरा सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट दिया जा सके. Now let's talk about these topic one by one. Now the first one, as I told you, foundational year. Now foundational year नॉर्मली 2 to 6 ईयर तक माना जाता है. अब ये फाउंडेशनल ईयर होता क्या है? ये एक ऐसा समय होता है इन विच द मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ द माइंड अकर. बच्चे का दिमाग सबसे ज़्यादा विकसित इसी दौरान होता है. तो ये समय ध्यान देने लायक है. डोंट थिंक कि बच्चा छोटा है पास के किसी स्कूल में लगा दिया जाए. लेटर ऑन वी विल लाइक इंट्रोड्यूस आवर स्टूडेंट आवर वार्ड टू अ वेरी वी कैन से वंडरफुल स्कूल और वेरी हाई फाई स्कूल एट्सेट्रा, कि किसी अच्छे स्कूल में फिर लगाएंगे. नो, यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द वेरी बेसिक. नींव अच्छी रखनी जरूरी है. जैसे घर की नींव अच्छी रखी जाएगी तो ऑटोमेटिक है घर की दीवार कभी नहीं हिलने वाली है. इसीलिए स्कूल की नींव भी अच्छी होनी चाहिए. शुरुआत के समय से ही ध्यान देना शुरू करें. नेवर थिंक ऑफ दैट कि शुरुआत का समय इंपॉर्टेंट नहीं है. बहुत सारे एजुकेशन, लॉट्स ऑफ एजुकेशन, दे ऑल्सो से द सेम थिंग. बहुत सारे जो बड़े बड़े शिक्षक लोग हैं उन्होंने भी यही बात करी है कि एक अच्छा अगर आपको एक स्टूडेंट अगर क्रिएट करना है तो यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द वेरी स्टार्टिंग, स्क्रैच लेवल से शुरू करना. सो वी यूज्ड टू फोकस इन दीज ईयर. हम इन ईयर्स पे खास तौर से फोकस करते हैं. नाउ द सेकेंड थिंग इज द लो स्टूडेंट टीचर रेशियो. जो हम रेशियो हम प्रोवाइड करते हैं हमारे यहाँ पे नर्सरी क्लासेस और केजी सेक्शंस के अंदर नॉर्मली 20 to 25 स्टूडेंट का ग्रुप होता है एंड वी यूज्ड टू प्रोवाइड 2 टीचर. हम उस एक ग्रुप पे 2 टीचर्स उनको प्रोवाइड करते हैं. नाउ अब ये 2 टीचर प्रोवाइड करते हैं हम लोग 20 से 25 बच्चे पे, तो उसका क्या फ़ायदा होगा? कोई बताएगा मुझे? मैम, वुड यू लाइक टू टेल मी? मैं 20 से 25 बच्चों के ऊपर वी आर प्रोवाइडिंग 2 टीचर्स, उसका क्या फ़ायदा है? इवन 1 टीचर कैन हैंडल 20 to 25 स्टूडेंट. तो मैं 2 टीचर दे के मैं क्या कर रही हूँ ऐसा खास? व्हाट आवर स्कूल इज़ डूइंग. जो आपके स्कूल की पूरी स्टडी स्ट्रक्चर है आप वो अच्छे से बच्चे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. ओके, 2 में यस ऑफ कोर्स 2 अगर हैं तो डेफिनेटली 2 होंगे तो ज़्यादा केयर हो पाएगी. ओके, एनीथिंग एल्स? और बच्चों की केयर भी अच्छी होगी. हाँ, केयर अच्छी होगी, बिल्कुल सही है. यूजुअली हम बच्चों से क्वेश्चन कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं बच्चों से. आप कुछ समझा बिल्कुल सही मैम. देखिए अब हम अगर 2 टीचर दे रहे हैं 20 से 25 बच्चे, समटाइम इट मे हैपन अ स्टूडेंट माइट बी लर्निंग द थिंग इन 10 मिनट्स, अनदर स्टूडेंट माइट बी लर्निंग इन द 30 मिनट. एक बच्चा आधा घंटा में सीख रहा है, एक 10 मिनट में सीख रहा है. अगर मान लीजिए एक ही टीचर देंगे तो वो आधा घंटा सारा एक बच्चे पे चले गया. अगर ऐसे 1 या 2 और बच्चे हुए तो डू यू थिंक टीचर सबका काम करा पाएगा? नो. In that case, we can give the personal preference to those students, those who are the slow learner, we can say. उनको हम एक टीचर सेपरेटली समय दे सकता है and another teacher may continue with the rest of the work. Similarly, एक बच्चों का, छोटे बच्चे होते हैं ये इमोशनली कनेक्टेड होते हैं अपने बच्चों के साथ. आपने देखा होगा अगर उनका टीचर नहीं आता है तो दे नेवर यूज टू एंटर इन द क्लासरूम, दे स्टार्ट क्राइंग, रोना शुरू कर देते हैं. इन दैट केस हम नॉर्मली क्या ध्यान रखते हैं कि दोनों में से ओनली 1 टीचर शुड बी ऑन द लीव एंड अदर 1 शुड बी प्रेजेंट. So that the teacher or the student when once enter in the classroom should not feel any kind of a discomfort. उसको discomfort नहीं होगा. ओके, तो इस तरीके से उनको बेसिक देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो पर्सनल प्रेफरेंस है दैट कैन बी गिवन बाय प्रोवाइडिंग 2 टीचर. अपार्ट ऑफ दैट 2 टीचर के अलावा we used to provide 1 full time nanny to them. एक नैनी. अब नैनी क्या काम करेगी सर आप बताएंगे ज़रा? हम उनको नैनी दे रहे हैं क्लासरूम में, उसका क्या फ़ायदा है? उसके लिए फायदा है कि बच्चों का ख्याल रखेगी. बच्चों का ख्याल रखेगी, बिल्कुल सही है. हाँ बिल्कुल सही का, बच्चों का ख्याल रखेगी. नैनी का काम क्या होता है? बेसिकली नैनी एक तरह से मदर की तरह काम करती है. नैनी का काम कब शुरू हो जाता है? जब बच्चा स्कूल में एंटर होता है. नैनी का काम वही शुरू होता है. शी यूज टू कैरी द बैग, उनका बैग लेके अंदर तक लेके जाती है, क्लासरूम में बैठाती है, बैग रखती है, पानी पीना है तो वाटर बॉटल ओपन करती है, बिकॉज दे आर नॉट लाइक कैपेबल टू डू दैट. बच्चा गिरा लेता है पानी अपने ऊपर. वो अपना टिफिन उसका जैसे है अनबॉक्सिंग करके देती
देती है, खाना खाने में मदद करती है. सम स्टूडेंट्स आर नॉट कैपेबल कि उनको बुर्कियाँ तोड़ के खाना खाना आता है. इन दैट केस नैनी यूज टू हेल्प देम. नॉट ओनली दिस, बच्चा वॉशरूम जा रहा है तो बच्चा इतना कंफर्टेबल नहीं होता कि अपने आप सब कुछ हैंडल कर पाए, तो नैनी यूज टू हेल्प देम. मीन्स परमानेंट एवरी टाइम एट ईच एंड एवरी मोमेंट नैनी यूज टू टेक केयर ऑफ दीज किड्स. उन बच्चों का ध्यान रखती है. इन द क्लासरूम नैनी यूज टू हेल्प द टीचर्स एंड द चिल्ड्रन. बच्चों का ध्यान रखती है, प्लस जब भी उनको कहीं आना है जाना है तो उसमें हेल्प करती है, क्योंकि आजकल के बैग्स भी बहुत भारी होते हैं. स्टूडेंट्स आर नॉट दैट मच कैपेबल. बेसिकली जो ममाज होती है उनका एक कंसर्न होता है, मेरे बच्चे का टिफिन खत्म नहीं हो रहा है, तो नैनी यूज टू टेक केयर ऑफ दैट. क्योंकि अगर आप बच्चों को पैसे ही छोड़ दोगे, जनरली बच्चे क्या करते हैं, आधी चपाती खाई और आधी डस्टबिन में डाल दी, तो नैनी खुद उनको अपने हाथों से खिलाती है. मीन जो पर्सनल ममा वाली केयर चाहिए होती है, दे यूज टू गिव. सम टाइम द स्टूडेंट मे फील स्लीपी, कई बार नींद भी आ जाती है बच्चों की. एट दैट टाइम ऑल्सो तो नैनी उनको मतलब बाकायदा ले करके बाकायदा बेड के ऊपर शिफ्ट करके उनको सुलाने में मदद करती है. मीन्स इस तरीके से ऑटोमेटिकली वी आर प्रोवाइडिंग 3 पर्सन एट द सेम मोमेंट इन द सेम क्लासरूम. 2 टीचर एंड 1 नैनी हम प्रोवाइड करें, ताकि उससे क्या होता है, पर्सनल केयर होती है उन लोगों की. Now, so this was the beneficial. Okay, this is the activity. Let's move to the next one. Now, what are the subject we are covering? अभी हम subject की बात करते हैं कि हम लोग KG department में from the nursery onwards, which are the subjects we are covering. Now, these are the subject given of the nursery class. ये nursery class के subjects हैं जो हम cover करते हैं. Mathematics, English, Hindi, Art and Craft, General Awareness, Rhymes and Poetry. Okay, now let's talk about these one by one. Now, the mathematics is there. मैथमेटिक हो गया फॉर एग्जाम्पल. ओके, सो अब मैथमेटिक है, इट्स वेरी कॉमन एंड मैंडेटरी पार्ट एंड इट मस्ट बी डन. ओके, ये होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, मतलब हर जगह इंट्रोड्यूस होना चाहिए. सो अब मैथमेटिक्स के अंदर व्हाट वी आर सेपरेट डूइंग, हम अलग से क्या कर रहे हैं, क्या स्पेशल कर रहे हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई शो यू दिस वन, अगर मैंने आपको ये दिखाया तो आपको क्या लगा, ये क्या है, ये कौन सा नंबर है आपको लग रहा है, ये 3 लग रहा है. इज दिस 3? ओके फाइन. Now, if I'm writing here like this, अब मैंने यहाँ पे ये राइट किया है, ये क्या कर रहा है, what is this, which number is this? 3. मैंने ये बोला, क्या ये दोनों एक जैसे दिखते हैं? तो आपको कैसे पता लगे कि ये भी 3 है वो भी 3 है? आपको पता है क्योंकि आप समझदार हो, यू आर ग्रोन अप. छोटा बच्चा ये नहीं समझ पाता. दिस इज द सिंबल एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट इन द रियलिटी. ये सिंबल है 3 का, 3 काउंटिंग को डोनेट करने का, और ये रियलिटी है. सिमिलरली अगर मैं 3 समान हाथ में उठाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई पिक लाइक दिस, मैंने ये बॉटल उठाई है. नाउ दिस इज द वे टू क्लैरिफाई, दिस इज ऑल्सो कंसिडर एज 3, इसको भी 3 कंसिडर किया जाता है. सो इन दिस वे वी हेल्प द स्टूडेंट टू इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट इन रियल लाइफ. हम सिर्फ उसको ये नहीं है कि लिखती तौर पे 3 लिखना सिखा दिया, दैट इज सफिशिएंट. नो, वी आर टेलिंग देम कि 3 असल में जिंदगी में यूज कैसे करना है. आपने देखा बच्चे को कई बार क्या होता है कि अगर आप 5 का सिक्का घर पे देते हो और एक 10 का नोट देने लगते हो, अगर वो 5 का सिक्के का शौकीन है तो वो कहता है मुझे तो वो सिक्का ही चाहिए. दे आर नॉट अवेयर कि 5 बड़ा है कि 10 बड़ा है, पर नहीं मुझे तो वो 5 का सिक्का चाहिए. दे यूजुअली डिमांड. सो वी यूज टू क्लैरिफाई दिस कॉन्सेप्ट कि इनमें डिफरेंस क्या है, और उसको रियल लाइफ में प्रैक्टिकली हम उसको सिखाते हैं. सिमिलरली वी डिड इन द इंग्लिश सब्जेक्ट एज वेल. अब इंग्लिश के अंदर आप लोगों ने देखा होगा आज की प्रोनाउंसिएशन चेंज हो चुकी है. अर्लियर टाइम पे जो वर्ड जैसे बोलते थे, आज के समय बहुत कुछ बदल गया है. आई होप यू आर अवेयर अबाउट दैट. नाउ अब ये एक चैलेंजिंग पार्ट है. नॉर्मली इंग्लिश का वर्ड हमारे समय पे कैसे करते थे, हम लोग पढ़ते थे अक्षर को तोड़ करके उसकी आवाज़ जोड़ दिया करते थे, बट आवाज़ क्लियर तो हो एटलीस्ट कि कौन सा जो लेटर है कैसे प्रोनाउंस किया जाता था. हमारे समय पे टीचर्स कैसे पढ़ाते थे, ए फॉर एप्पल, बट आज के समय कैसे पढ़ाया जाता है, ए सेज एप्पल. मीन्स ए की जो साउंड है तो वो साउंड सिखाई जाती है. जब वो साउंड को जोड़ते हैं तो स्टूडेंट प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती ही नहीं है. वी यूज टू टीच देम द फोनेटिक साउंड वेरी क्लियरली विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटीज, so that they won't make any kind of mistake while pronouncing a word from the very scratch level. हम इस चीज़ पे डालते हैं. Similarly in the Hindi subject also we used to focus on that. आपने एक चीज़ और देखा होगा, in the nursery class we are introducing 2 languages. हम उनको क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश एंड हिंदी. एंड द पंजाबी वी यूज टू इंट्रोड्यूस इन द नेक्स्ट वन. पंजाबी हम उसके नेक्स्ट लेवल यानी कि LKG लेवल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं. आफ्टर दैट
लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, आर्ट एंड क्राफ्ट. नाउ व्हाट इज आर्ट एंड क्राफ्ट? आपको पता ही होगा, ड्राइंग, कलर्स एटसेट्रा, दैट इज नोन एज आर्ट एंड क्राफ्ट. नाउ व्हाई आर्ट एंड क्राफ्ट इज रिक्वायर्ड? एक छोटा बच्चा है जो अच्छे से लिख नहीं सकता है, उसको हम लोग ड्राइंग करा रहे हैं, कलरिंग करा रहे हैं. व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? बिकॉज द स्टूडेंट्स गेट फैसिनेटेड विद कलर्स. उनको रंग अच्छे लगते हैं. आपने देखा होगा खिलौने चूज कर जाते हैं, सेम खिलौना जो होता है अलग अलग रंगों में होता है, पर बच्चा फिर भी कहता है मम्मा मुझे रेड लेना है, मम्मा मुझे पिंक लेना है. क्यों? बिकॉज दे गेट फैसिनेटेड एंड अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कलर. वो रंगों से प्रभावित होते हैं. सो दैट्स वाई दिस इज मस्ट. ये ज़रूरी है. ये बच्चों में क्रिएटिविटी लेकर के आता है, प्लस उनके हैंड पे कंट्रोल होता है. जब वो कलरिंग करते हैं तो बाउंड्री जो बनी होती है, व्हेन दे स्टार्ट कलरिंग ओवर देयर, उनके हाथों में कंट्रोल आता है. ये और एक रिलैक्सेशन के लिए दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग. बच्चा रिलैक्स फील करता है, हर वक्त पढ़ते रहना, दे डोंट वांट दैट. दे नीड सम काइंड ऑफ रिलैक्सेशन ऑल्सो. सो दिस सब्जेक्ट इज हेल्पफुल फॉर देम. नाउ द नेक्स्ट वन इज द जनरल अवेयरनेस. अच्छा, अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं, मतलब आम जानकारी जो बच्चे को होनी चाहिए, आपको क्या लगता है क्या जानकारी चाहिए? क्या उसको प्रधानमंत्री का नाम पता होना चाहिए? नहीं. उसकी जगह अगर हम बच्चे को बच्चे पापा का फ़ोन नंबर याद कराए, उनका नेम याद कराए, उनके विलेज नेम याद कराए, डोंट यू थिंक वो ज़्यादा बेटर होगा? सो वी फोकस ऑन दीज थिंग जो सच में रिक्वायरमेंट है. व्हाट द स्टूडेंट वांट टू डू विद द प्राइम मिनिस्टर नेम एटसेट्रा, उसको करना क्या है, उसकी तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ होना चाहिए. सो वी यूज टू फोकस ऑन दीज थिंग. अ पार्ट ऑफ दैट उसको उठने बैठने का तरीका, बच्चों को सत श्री अकाल या गुड मॉर्निंग बोलने का तरीका ये सिखाया जाए. तो वी यूज टू टीच एंड दैट्स वाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस सब्जेक्ट ऑल्सो. इसी कारण से हमने ये सब्जेक्ट भी डाला हुआ है. एंड द राइम एंड पोएट्री, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट पार्ट. म्यूजिक सबको पसंद है, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं. और नॉर्मली आपने देखा होगा कि घर पे जब छोटा बच्चा होता है एंड इफ एनी ऑफ द रिलेटिव्स कम्स टू अस, हम कहते हैं बेटा जल्दी जल्दी जॉनी जॉनी सुनाना जरा, हम बोलते हैं ना, और बच्चे उसको बड़ा इंजॉय करते हैं. दे स्टार्ट राइमिंग लाइक दिस. तो हम लोग ये राइम और पोएट्री, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट और वी कैन से मस्ट पार्ट ऑफ द करिकुलम. सो दैट्स वाई वी इंट्रोड्यूस दिस वन. बट दिस राइम्स आर टॉट इन द सेपरेट वे, इन द डांसिंग मोड विद एक्शन एटसेट्रा. उनको सिखाई जाती है बच्चों को. इस तरीके से we used to cover up the basic. Okay, now this is the activity. Let's come to this one. Now what is holistic growth? As I told you in the very early, मैंने आपको शुरुआत में बताया holistic growth होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का विकास होना. अब यहाँ से यहाँ तक का क्या मतलब हुआ? यहाँ दिमाग है, आंखें हैं, ज़बान हो गया, नाक, सुनने की शक्ति हो गई, हमारे इमोशंस हो गए, हाथों की मूवमेंट्स, पैरों की मूवमेंट, ये पूरा शारीरिक विकास ये जाना जाता है होलिस्टिक डेवलपमेंट. अब होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हम क्या करते हैं? वी यूज टू डू द टेक द प्रेफरेंस ऑफ अवर डांस एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी. इनका हम लोग लेते हैं. अब ये होलिस्टिक डेवलपमेंट क्यों रिक्वायरमेंट है? लाइक एज पर द CBSE रूल NEP 2020, पहले NEP 2020 मीन्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फर्स्ट क्लास ऑनवर्ड, पहली क्लास से लागू होती थी. लेकिन अब सरकार ने क्या कहा है दैट इट मस्ट बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम द प्लेवे से ही इसको फॉलो किया जाए. इसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि बच्चों के अंदर जो है पंचकोशा विकास के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए. अब ये पंचकोशा विकास क्या चीज़ होती है? इसमें बच्चों के इन विकास पे ध्यान दिया था. पहला होता है इमोशनल, भावनात्मक, मीन्स अपनी फीलिंग को जाहिर करना और दूसरों की समझना. दूसरा इंटेलेक्चुअल, दिमागी बौद्धिक विकास. तीसरा आ गया फिजिकल, शारीरिक विकास, मीन्स शरीर के हर अंग का इस्तेमाल करना. अगला आ गया आपका क्रिएटिव होता है रचनात्मक, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, स्पेशल होता है, दे कैन डू समथिंग वेरी गुड, ये विकास हो गया. नेक्स्ट होता है सोशल स्किल, दैट इज मस्ट. बच्चा यहाँ पे घर में तो बड़ा अच्छा बोलता है जी, वही फैमिली में लेके ले जाओ तो शाई फील करता है, जिसे शक्ल करते हुए शर्माता है. दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. सोशल स्किल, मिलना जुलना, मीन्स सामाजिक विकास इज ऑल्सो मैंडेटरी, मीन्स समाज में उसको कैसे उठना बैठना बोलना है. फॉर दिस वी यूज टू टेक हेल्प ऑफ द स्पोर्ट्स एंड डांस एंड अदर करिकुलर एक्टिविटीज, इनकी मदद से. नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट काउंसलिंग. Now what is student counseling? देखिए, as I told you कि हर बच्चा स्पेशल है. Sometime the student might be facing some issues, maybe at home or maybe in the friend circle. कई बार आपने देखा बच्चा अचानक अच्छा बिहेव करते करते वियर्ड बिहेव करता है. उसके बिहेवियर में, उसके स्वभाव में कुछ बदलाव आने शुरू हो जाते हैं. समझ नहीं आता हम लोग को कि हुआ क्या है. At that time they demand for the counseling. उनको पर्सनल केयर की रिक्वायरमेंट होती है. There might be cases कि उनके घर में कोई इशू चल रहे, आसपास कोई प्रॉब्लम है,
क्योंकि हमें नहीं पता है, एवरी स्टूडेंट माइट बी कमिंग फ्रॉम द सेपरेट बैकग्राउंड, हर कोई अपने पिछले किसी बैकग्राउंड से आता है, किसी के साथ घर में कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, कई बार हमें नहीं पता होता है, ठीक है, मे बी बच्चा किसी ट्रॉमा में है, किसी दुख दर्द में तकलीफ में हो, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, एट दैट टाइम दे नीड पर्सनल केयर। तो ऐसे केस में अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, बिकॉज आफ्टर पेरेंट्स वी आर हेयर, पेरेंट्स के बाद हम ही लोग होते हैं जो यहाँ पर उनका ध्यान रखते हैं। तो अब वहाँ पे किसको ध्यान देना, हमको ध्यान देना है। सो दैट्स वाई वी यूज टू प्रोवाइड द स्टूडेंट काउंसलिंग एंड दैट इज 1-to-1, एक एक बच्चों की पर्सनल काउंसलिंग होती है। ड्यूरिंग द काउंसलिंग वी यूज टू लाइक फाइंड आउट द थिंग्स बाय विच द स्टूडेंट इज गेटिंग अफेक्टेड, जिन कारण से बच्चे के स्वभाव में बदलाव आ रहा है, वी यूज टू चेक आउट दोज थिंग्स, वो चीज़ें पता करने की कोशिश की जाती है, उन्हें सॉर्ट आउट किया जाता है। एंड दिस इज नॉट द थिंग कि सिर्फ बच्चे के साथ प्रॉब्लम है तभी बिहेवियर चेंज हो रहा है तभी ऐसा किया जाता है। सम टाइम बच्चे को एटिकेट सिखाने हैं, अच्छे मैनर्स सिखाते हैं, एट दैट टाइम ऑल्सो वी यूज टू प्रोवाइड द काउंसलिंग, उस समय भी हम बच्चे को पर्सनल काउंसलिंग वगैरह देते हैं। एंड दिस इज द मस्ट थिंग, ये ज़रूरी है। इवन आई एम सेइंग दैट इन ईच एंड एवरी स्कूल दिस मस्ट बी प्रोवाइडेड, ये होना चाहिए हर स्कूल के अंदर, बच्चों के ऊपर पर्सनली ध्यान दिया जाए। उनका हल्का सा बदलाव कई बार हम इग्नोर करते हैं तो उनको बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो वी नीड टू चेक कि बच्चे के साथ हो क्या रहा है, क्या वो खुश है यहाँ के, अगर खुश नहीं है तो क्यों नहीं है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला बच्चा अचानक चुप क्यों हो गया है, ऐसा क्या हो गया है, क्या वो टीचर से डर रहा है, क्या वो किसी बच्चे से झगड़ा है, उसके दोस्तों में कोई दिक्कत है, या घर पे माता पिता को लेके कोई प्रॉब्लम है, या कोई और कारण है, मे बी वो कंफर्टेबल ही, या कोई फिजिकल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है उसको। For this is also the mandatory. Now next one is the parents app. Now this facility is provided by our school to each and every parents. हर parents को हम ये special facility provide करते हैं। ये facility क्यों provide की जाती है? So that the parent those who have the busy schedule, okay, they can have a check over their ward. वो अपने बच्चे पर एक check रख सकते हैं। And what kind of facilities are given through this parent app? That is, first one is the student profile. Student profile में name of the father, name of the mother, village, contact number of parents. If the student is grown up, then contact number of the student is also there, Aadhaar card and other things, okay, birth certificate, etc. Everything it's been given there. If you update anything, like time to time हम updation कराते हैं, sometime we used to change the name of the student, in that case that is also updated here, वो यहाँ पे update हो जाता है। Second one is the attendance report. Once the student come to the school, automatically we mark the attendance, okay, and the parents will come to know about it that the ward has reached to the school. उनको पता लगता है, like sometime during the foggy season vans late होती है, जो बहुत common है, natural है, because देखो nature के सामने हमारा जोर नहीं चलता है, obvious सी बात है, okay, driver also used to do their best, वो अपना best करते हैं और बच्चों की security के चक्कर में उतना ही slow लेके आते हैं जो कि allowed है by the school side also। तो उस केस में student कई बार late पहुँचते हैं, तो उनकी attendance marking उसी timing पे होती है, तो यू विल कम टू नो अबाउट इट कि किस समय बच्चा वहां पहुंचा है। अ पार्ट ऑफ दैट, इन बिटवीन सम टाइम बच्चे को लेके जाया जाता है, तो गेट पास एंड आउट पास आर गिवन टू दैम, तो यू विल कम टू नो अबाउट इट कि किस समय उसका गेट पास हमारे यहाँ से कट किया गया एंड एट व्हाट टाइम हु हैज टेकन दैट वन चाइल्ड, कौन उस बच्चे को घर लेकर के गया है। नेक्स्ट इज द टेस्ट रिपोर्ट एंड एग्जाम रिपोर्ट। रेगुलर बेसिस टेस्ट आर ऑर्गेनाइज्ड इन द क्लासरूम, तो यू विल कम टू नो अबाउट द रिपोर्ट ऑफ द टेस्ट, इन विच सब्जेक्ट हाउ मेनी मार्क्स ही और शी इज गेटिंग, कितने नंबर आ रहे हैं, और वेदर ऑफ दीज सब्जेक्ट टेस्ट आर गोइंग और नॉट, इस सब्जेक्ट का टेस्ट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। यू विल कम टू नो अबाउट द कंप्लीट एग्जाम रिपोर्ट ऑफ दैट स्टूडेंट। Direct communication. Now what is direct communication? Sometime we don't like record or we don't like make the contact of each and every subject teacher in our mobile phone. हम कई बार सभी subject teacher का नंबर नहीं रखते फ़ोन के अंदर। In that case through the app you can directly communicate. आप ऐप के थ्रू सीधे ही उनके टीचर के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। You can like send a message और वो मैसेज सीधे ड्रॉप होगा उनके व्हाट्सएप के ऊपर, and along with that this message will be accessible by the admin department also. वो लोग भी इस मैसेज को एक्सेस कर सकते हैं जो आप उनको भेज रहे हैं, और अगर आपको रिप्लाई आता है टाइम से, वेल एंड गुड, जो हमेशा आता है, बट इन केस इफ यू आर नॉट गेटिंग द रिप्लाई, ओके, यू कैन ऑल्सो रिपोर्ट रिगार्डिंग दैट कि हमें रिप्लाई नहीं आया टीचर की तरफ से। नेक्स्ट इज वैन ट्रैकिंग, मीन्स यू कैन ट्रैक द वैन्स कि वैन कहाँ पर है, किस समय है। समटाइम किसी भी रीजन से मान लीजिए डिले डिपार्चर होता है, तो वी यूज टू ब्रॉडकास्ट द मैसेज कि आज वैन इस इवेंट की वजह से 20 मिनट्स लेट डिपार्चर होगी। लेकिन क्या होता है कि पेरेंट्स को फिर भी होता है कि डेली तो वैन 3 o'clock आती है, आज 3:05 हो गई, क्यों नहीं पहुंची है। इन दैट केस यू कैन ट्रैक एंड यू कैन चेक वेयर इज द वैन।
कि वैन कहाँ पर है इस समय, आप वो चेक कर सकते हो ताकि थोड़ा सब्र रख सके पेरेंट्स. ओके, नेक्स्ट वन इज द नोटबुक चेकिंग एंड अदर चेकिंग रिकॉर्ड्स. मीन्स बुक्स और नोटबुक रेगुलर बेसिस पे चेक होती है जैसे जैसे इट्स बीन अपडेटेड ऑन द ऐप ऑल्सो. तो आप देख सकते हो कि आपके बच्चे की जो नोटबुक एंड बुक्स है वेदर दोज आर बीइंग चेक्ड ऑन रेगुलर बेसिस और नॉट, और कितना काम कंप्लीट हो चुका है और कितना पेंडेंसी में है. इन दैट केस यू कैन हेल्प योर वार्ड एज वेल. अपने बच्चों को मदद भी कर सकते हो अपने काम पूरा रखने में. नेक्स्ट इज द क्लास वर्क एंड होमवर्क. मीन्स class work what is being done in the school and homework what is given as to be done at home. Okay, that is separately, both are updated on the app, so you can check from there कि क्लास में आज क्या कराया और होमवर्क में क्या कराया गया. तो किसी तरह का अगर मिसमैच भी होता है तो यू कैन डिस्कस विद द टीचर ऑल्सो. नेक्स्ट इज द फी डिटेल्स. वॉट एवर यू यूज टू पे, जो पूरा ओवरऑल का रहता है आपका साल का पेमेंट, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर आपको मिलती है. जितना आप पे कर चुके हो, जितना पेंडेंसी में आ रहा है, यू कैन चेक ओवर देयर, वहाँ से कंप्लीट चेक ले सकते हो आप. नेक्स्ट is the social media. Means all the icons of the social media on which are like post and other things are updated, you can access from here. जहाँ पे इंस्टा हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, जो भी हमारे स्कूल की एक्टिविटीज होती है वहाँ अपलोड होती है, इसमें आपके बच्चों की भी एक्टिविटीज होती है, यू कैन हैव एक्सेस फ्रॉम देयर. तो वो वहाँ से आप एक्सेस करके यू कैन चेक, यू कैन वॉच दैम अगेन एंड अगेन एंड कैन प्रेफरेंस टू द अदर्स ऑल्सो. दूसरों को भी प्रेफर कर सकते हैं टू कैन इफ यू वांट टू शो द एक्टिविटीज of your words to the other. So this is the overall things we discussed today and this is the end of the session. Now if you do have any doubt you can ask me. आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप इसके रिगार्डिंग मुझसे पूछ सकते हैं. दिस इज द ओवरऑल सेशन. ओके, इफ you can, otherwise thank you so much from my side. Thank you.